Assalamualaikum. This is me, dietitian Aisha, right at your service with another exciting topic of for weight loss through intermittent fasting. So in this video, I'll tell you what are the benefits of intermittent fasting on your body, what are the negative effects on your body, and also which age group is not allowed to do this intermittent fasting for the weight loss. So if you want to lose 2 to 3 kgs in 1 week, थ्रू इंटरमिटेंट फास्टिंग दिस वीडियो इज फॉर यू सो कंप्लीट वीडियो वॉच करें इसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स पता चलेंगे कि व्हाट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग और क्या आप इसको कर सकते हैं और इसको किस तरीके से आपने अपनी रूटीन के अंदर जो है वो स्टार्ट लेना है एंड हाउ इंटरमिटेंट फास्टिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर फास्टिंग एंड ऑल्सो हाउ इट्स डिफर फ्रॉम द रमदान फास्टिंग तो वीडियो को कंप्लीट देखें और इंफॉर्मेशन लें और इफ़ यू अप्लाई दिस and get results, do let me know in the comment section. And if you have any queries, you can ask me on on my Instagram channel, which is Wellness with Aisha. So you can comment me there and I'll glad to help you. So let's start the video with the basic information about intermittent fasting. Intermittent fasting, which is commonly known as IF, is not only gives you benefits in weight loss, but it also helps to detoxify your body. It also beneficial in anti-aging process and also lowers your blood pressure and cholesterol levels, controls your diabetes, and also good for your brain health. So let's move to the next slide. So, by the definition, intermittent fasting is essentially the practice of occasionally or at the certain times going for the period of time without food. So, इसमें major concern is about when to eat, not what to eat. What to eat is the secondary concern, and fasting is the primary concern. We don't want that our body goes to starvation state. हमें बॉडी को भूखा नहीं इसमें रखना बल्कि बॉडी को फास्टिंग स्टेज पे रखना है जिसमें प्रॉपरली व्हेन वी ब्रेक द फास्ट वी हैव टू ईट फूड वी हैव टू नरिश द बॉडी और हील द बॉडी सो इसमें कोई प्रॉपर डाइट प्लान नहीं होता इफ यू वांट टू डू बाय योरसेल्फ यू कैन आल्सो डू इट परफॉर्म इट और इसको आप अच्छे तरीके से खुद भी कर सकते हैं इफ यू गेट द एनफ नॉलेज अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग और इसमें डाइट प्लान्स भी अवेलेबल होते हैं अगर आप इसको किसी कोच की मदद से करते हैं व्हेन यू हायर अ कोच फॉर योर ईज तो आप जो है उसको उसमें आपका जो कोच होता है ही विल डिसाइड और शी विल डिसाइड कि आपकी बॉडी के हिसाब से आपकी मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कैलोरी डेफिसिट के अकॉर्डिंग आपको क्या चीज़ें देनी है तो ईटिंग पैटर्न बेसिकली वी फॉलो नॉट स्पेसिफिकली अ डाइट प्लान सो इसको आप खुद भी कर सकते हैं सो इट इज़ वेरी इजी टू डू so next we have how does it works time restricted feeding है most popular form है and it is rather a simple approach. So there are a number of different protocols हैं intermittent fasting के और इस पे still researchers काम कर रही हैं. There are many researchers that are concerned about its positive effects and also its negative effects. Some researchers agree with this intermittent fasting that it is good for the humans to do this exercise, this practice, but some researchers, due to its negative effects, highly discourage this. So there are researchers that are performing on it. So this is under process or under researched topic. So let's move to the other topic. How does it work? So आपकी body पे ये कैसे काम करती है? So यहाँ पे एक बात मैं आपको लाजमी शेयर करूँगी कि if you want to lose 2 to 3 kgs, this intermittent fasting will help you. But if you want the permanent weight loss or permanent transformation of yourself, तो फिर ये इट इज़ नॉट अ गुड डिसीजन कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पे जाएं ठीक है सो होता क्या है हमारी बॉडी में एज अ दिस ग्राफ विल शो यू कि आपकी बॉडी के अंदर जो है वो क्या क्या चेंजेस आते हैं व्हेन यू ईट फूड सो सिंपली क्या होता है जब हम फूड लेते हैं इट गोज इनटू स्टमक एंड आफ्टर द डाइजेशन इट कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज तो फिर वो जो ग्लूकोज जब भी हम खाना खाते हैं ग्लूकोज में एक स्पाइक आता है इंसुलिन स्पाइक्स आते हैं हमारे जब ग्लूकोज में खाना कन्वर्ट हो जाता है हमारा फूड ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है इट गिव्स अस इंसुलिन स्पाइक्स तो इन जब हमने खाना खाया फिर उसके बाद हमारे मील्स ब्रेकफास्ट से लंच के दरमियान लंच से डिनर के दरमियान देयर इज अ गैप बिटवीन देम तो इस गैप में हमारे जो लेवल्स होते हैं वो नीचे आ जाते हैं एंड व्हेन वी ईट फूड ये फिर ऊपर चले जाता है तो इन द रेगुलर रूटीन वी हैव दीज स्पाइक्स इन द लेवल्स सो इस डिसमैनेजमेंट या इस स्पाइक्स को कंट्रोल करना है हमने इसमें दैट गिव्स अस रिजल्ट इन वेट लॉस तो बेसिकली होगा क्या जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे होंगे तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली अपने मैकेनिज्म को मेटाबॉलिज्म को शिफ्ट कर देगी ऑन टू द
फैटी एसिड्स। जब वो हमारी फैटी एसिड्स की ब्रेकडाउन स्टार्ट करेगी एडिपोज टिश्यूज के अंदर जो हमारे पास स्टोर्ड हुई ग्लूकोज होती है उसको इस्तेमाल करना शुरू करेगी, उसकी ब्रेकडाउन करेगी इनटू फैटी एसिड्स एंड देन वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगी। तो उस ब्रेकडाउन के रिजल्ट में वी लूज फैट एंड वी गेट रिजल्ट्स द लॉस ऑफ द 2 to 3 kgs or 5 kgs or even people will came out with 5 to 10 kgs results. So this is the process behind this. सो इट इज बेसिकली ईट स्टॉप एंड ईट मेथड। आपको खाना है, फिर नहीं खाना, रुकना है एंड फिर खाना है। सो इट इज अ ईट स्टॉप एंड ईट मेथड। और इसके डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। दिन के एक हिस्से में यू आर गोइंग सपोज टू ईट एंड यू आर सपोज टू फास्ट। सो देयर इज अ फास्टिंग विंडो एंड देयर इज एन ईटिंग विंडो। स्टार्टिंग में क्या होता है हमारे पास कि कुछ लोग जो स्टार्ट करते हैं, एंड हियर्स द पॉइंट व्हेन यू हैव टू नो अबाउट योर बॉडी। जब आपको अपनी बॉडी के बारे में नहीं पता तो देयर इज दिस पॉइंट व्हेन यू गेट नॉलेज अबाउट योर सेल्फ कि आप सुबह उठकर अगर आपको भूख लगती है बहुत तेज, आपसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, तो फिर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको ये चीज अभी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। लेटर ऑन एजेस मे बी यू कैन, बट इस टाइम पे आपकी बॉडी डिमांड कर रही है कि आपको सुबह उठते ही आपको फूड चाहिए। सो आफ्टर दैट जब आप इसको स्टार्ट करते हैं, कुछ लोगों को बीपी लो होता है, डिजीनेस फील होती है, फटीग फील होती है, एनर्जी लेवल्स लो फील होते हैं। सो देयर आर द रियली कॉमन सिम्टम्स। लेकिन अगर ये सिम्टम्स एक हद से बढ़ जाएं तो फौरन से आपको इसको स्किप कर देना है, फौरन से इसको छोड़ें और बैलेंस डाइट की तरफ शिफ्ट हो जाएं। ठीक है, so there's the alarming signs or there's the early signs when we start, but ये साइंस एक दो दिन भी रहते हैं और उसके बाद से बॉडी यूज टू हो जाती है, बॉडी को समझ आ जाती है कि नाउ इट्स द टाइम टू फीड और नाउ इट्स द टाइम टू फास्ट। तो फिर इजी हो जाता है बॉडी के लिए। सो नेक्स्ट वी हैव द कॉमन प्रोटोकॉल्स and what are the variations between them. So first protocol that I usually used for my clients and I usually recommend, और बहुत से रिसर्चेस और बहुत से लोग इस पर ही काम कर रहे हैं, इस वाली को फॉलो करते हैं, इस प्रोटोकॉल को, that is time restricted feeding, which is about 16-hour fast and 8-hour eating window, which is very easy to manage. So basically, and other protocols are eat, stop, eat, which is about 24-hour fast 1 to 2 times per week. ठीक है, हफ्ते में एक से दो दफा आपने पूरे दिन फास्ट करना है एंड द अदर डे यू आर सपोज टू ईट समथिंग, eat something, or like you have to spend the day on the regular basis. Alternate day fasting, which is also known as ADF, 36-hour fast and 12-hour eating window इसमें होती है। And there is an other common and sunnah method, which is 5-2 period of fasting, which is about 5 non-consecutive days पे fasting होगी and other 5 days are supposed to be regular, जिसमें आपने 5 दिन जो है वो अपना रेगुलर वीक में रहना है। और नॉन कंसेक्टिव लाइक यू इफ यू फास्ट फॉर मंडे, पूरा दिन आपने फास्ट किया, विच इज अबाउट टू, जो रमादान की फास्टिंग होती है 14-15 घंटे, ठीक है, 12 से 15 घंटे की वो वाली। अब हर तरफ मुख्तलिफ होती है, तो जो आपका रमजान वाला फास्ट होता है बेसिकली आई यूजली रिकमेंड दिस इन दिस विंडो कि इसमें आप 5 दिन में हफ्ते में 2 दफा फास्ट करें। अगर आपने मंडे को फास्ट किया यू आर सपोज टू नेक्स्ट फास्ट फॉर द वेडनेसडे और थर्सडे, नॉट ऑन द ट्यूसडे। तो आपने दो इकट्ठे एक साथ फास्ट नहीं लेने हैं, इसमें ब्रेक करके आपने फास्ट लेना है ऑन द नॉन कंसेक्टिव। So in this 16 to 8 window, you are allowed to eat in the 8 hour window and fast for the 16-hour window. सो ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है, इसको आप आज से भी कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो आज ही देख रहे हैं तो यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे। आपको क्या करना है, आज रात 8 बजे तक अपना डिनर कर लेना है और उसके बाद आपको जो अपना 16 आवर का फास्ट है वो स्टार्ट करना है। 16 आवर के फास्ट में भी जो फूड आपके पास अलाउड होंगे वो नेक्स्ट स्लाइड में मेंशन है। आई विल टेल यू कि आप क्या उसमें ले सकते हैं और क्या नहीं ले सकते। तो आपने अपना 8 बजे डिनर कंप्लीट कर लिया, 7:30 बजे तक, 6 बजे तक, वेन एवर यू हैव डन, आप उसको कंप्लीट करें। 8 बजे के बाद यू आर नॉट सपोज टू अलाउड टू ईट एनीथिंग विच गिव्स यू कैलोरीज। उसके बाद फास्ट करें, आप सो जाएं और उसके बाद आपने सुबह जब भी आप उठते हैं व्हेनेवर यू वेक अप, तो 12 बजे के बाद आपकी ईटिंग विंडो स्टार्ट हो जाएगी, विच यू हैव टू ब्रेक द फास्ट विद स्लोली, लाइक यू कैन ईट fruits, you can eat dry fruits, soaked dry fruits, and whatever you have the eating pattern, you can start with this. अब अपना मेन मील कंज्यूम करें, अपना ब्रेकफास्ट, अपना लंच, if you have to skip some meal you can
It's all depend on your body requirement and your eating pattern that you have designed for yourself, and then end up this 8 p.m. So which foods are allowed to eat in the fasting window and which foods are not allowed to eat in the eating window, they are here. सो यू फास्टिंग विंडो में आप क्या ले सकते हैं, आप पानी ले सकते हैं। पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप उस टाइम पे फास्टिंग कर रहे हैं। फास्टिंग में आपने अपने हाइड्रेशन स्टेटस को मेंटेन रखना है इफ़ यू वांट टू अचीव द गोल। अगर आप अपना गोल अचीव करना चाहते हैं, इट्स वेरी important to take the stay yourself hydrated or take the adequate amount of water। बल्कि आपको इसमें थोड़ा सा ज़्यादा अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट से पानी लेना होता है, बिकॉज व्हेन वी ईट फूड हम लोग कुछ ना कुछ पानी से भी, हमें फूड से भी पानी का कंटेंट आ रहा होता है अबाउट 20%। तो इसमें हम चूंकि फास्टिंग स्टेज पे हैं, हमें पानी नहीं इस तरह से पूरा मिल रहा है, तो हमें अपने हाइड्रेशन स्टेटस को मेंटेन रखना है। ऑल्सो यू कैन टेक नेचुरल हर्बल टीज। घर में जो भी आप टर्मरिक, जिंजर या कोई भी इस तरह की आपको हर्बल टी लेनी है, आप वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप ग्रीन टी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, डेट इज़ आल्सो वेरी गुड फॉर योर मेटाबॉलिज्म। तो ये सारी चीज़ें आपका मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेंगी, बॉडी को हील करेंगी, नरिश करेंगी। सो देन वी हैव फूड्स दैट आर नॉट अलाउड। वो फूड्स जो सिंपली आप याद रख लें, जो आपको कैलोरीज प्रोवाइड कर रहे होंगे, दीज फूड्स आर नॉट अलाउड टू ईट। इसमें आपके पास सबसे पहली जो चीज़ आती है, डेट आर फ्रूट जूसेस। फ्रूट जूसेस आपके पास कोई भी फ्रूट जूस आप नहीं इसमें ले सकते, कोई चाय नहीं ले सकते, टी नहीं ले सकते, कोई भी सोडास, बटर मिल्क, ये चीज़ें आप नहीं ले सकते। जबकि ईटिंग विंडो के अंदर आप यही चीज़ें ले सकते हैं। जस्ट लाइक सोडा, मतलब उसमें भी आपके पास नॉट अलाउड की एक प्रॉपर लिस्ट है, जिसमें आप जंक फूड नहीं ले सकते, कार्बोनेटेड बेवरेजेस नहीं ले सकते, एक्सटर्नल सोडाज नहीं ले सकते। बाहर का मील अवॉइड करें इफ़ यू आर डूइंग दिस, क्योंकि आपने अगर इतनी मेहनत करके ये काम करना है, इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, तो व्हाई यू स्पॉइल दिस विद वन सच बैड फूड आइटम और वन सच बैड हैबिट यू हैव। तो आप अपना स्पॉइल क्यों करना चाहेंगे? सो विच फूड्स आर अलाउड? यू कैन टेक फ्रूट्स, यू कैन टेक वेजिटेबल्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, होममेड मील्स, नट्स, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, मीट एंड एग्स। हर चीज़ आप ले सकते हैं जो भी आप इसमें रेगुलर रूटीन में खाना चाहें। So next we talk about the potential benefits of intermittent fasting, and here we have इंटरमिटेंट फास्टिंग के जो पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला उसमें बेनिफिट तो यही है कि ये हमारी फैट की ऑक्सीडेशन को, बर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करता है व्हेन वी हैव द फास्टेड पीरियड। और उसके अलावा हमारे जो हंगर के लेवल्स होते हैं उनको भी स्प्रेस करने की कोशिश करता है, इनको भी कम करता है, जिससे हमें भूख कम लगेगी, हम कम खाएंगे और उसके उसके साथ साथ हमारा जो फास्ट है वो भी बड़े अच्छे तरीके से पूरा हो पाएगा। सो मोर स्टेबल एनर्जी लेवल्स, इसमें हमारे एनर्जी लेवल्स बड़े स्टेबल हो जाते हैं। मूड स्विंग्स और मूड अप एंड डाउन, ये भी मूड्स भी बड़े इंप्रूव हो जाते हैं। सो इट बेसिकली वर्क्स ऑन आवर हार्मोन्स, ऑन आवर endocrine system, so it works very well on our body. Hygiene, the mental focus and concentration levels, manages the blood sugar level. It is very good for diabetes 2 patients, very good to become from the diabetes to pre-diabetes to conversion. Regulates the hormonal balance in the body, और body में hormonal balance को भी maintain करता है, and it is very effective in the PCOS and PCOD females. So next we talk about the negative effects of intermittent fasting, which is also very important to start. So here we have the negative effects of intermittent fasting in the body. जिसमें सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन नेगेटिव इफेक्ट है, दैट इज के ईटिंग विंडो में बहुत ज़्यादा खा लेना, ओवर ईटिंग करना ईटिंग विंडो में, विच लीड्स टू द डिसऑर्डर्ड ईटिंग एंड कैन बी टू कॉम्प्लेक्स फॉर द सम ऑफ द पीपल who really start this at the early stages, and significant negative effects for the females and lack of expected benefits. So here we have the negative effects of intermittent fasting for those जो कि not allowed हैं, जो लोग ये intermittent fasting को नहीं perform कर सकते until or unless they are good to go. So इसमें हमारे पास कौन सा ग्रुप आ जाता है? सबसे पहले children and teens are not allowed to do this intermittent fasting. Pregnant and lactating women are also not allowed to perform this intermittent fasting. So इसके साथ साथ diabetes type 1
एंड एडवांस डायबिटीज के पेशेंट्स भी इसको नहीं कर सकते हैं। और पीपल विद सम अदर मेडिकल कंडीशंस वो भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद इसको परफॉर्म कर सकते हैं। जिनको कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा टाइप ऑफ, तो वो भी इसको अवॉइड ही करें, क्योंकि वो ईटिंग डिसऑर्डर है तो फिर उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी। उसके अलावा अंडरवेट, फ्रेल और एल्डरली पीपल्स आर नॉट अलाउड टू do intermittent fasting. Fasting is unsafe if overdone or if not done properly. So do it by the proper consultation, proper guidance, or I hope this video will help you in a better way, और इसने आप काफ़ी help out किया होगा. If I made this video very helpful for you, do comment me and like this video, and also subscribe my channel, hit the bell icon, and also follow me on my Instagram, Wellness with Aisha. And if you have any query and want to make a customized diet plan or any consultation, you can go and visit my Wellness with Aisha Instagram page, where I'll provide you free consultations for my YouTube family. Thank you so much for listening.